Rahim. Welcome to the class of Theory of Machine. And our today's lecture are basically Introduction to Theory of Machine. So, in this text, we'll explain the topics of kinematics and dynamics of machinery in respect to synthesis of mechanism in order to accomplish desired motion or the task, and also the analysis of the mechanisms in order to determine their rigid body dynamics behavior. So basically in theory of machine we will be discussing links, nodes, joints and the relative motion between different kind of links. And when we join these kind of links, we'll generate the mechanism. And the basic purpose of a mechanism is to provide the motion. So basically, in the course of theory of machine, we will be discussing the displacement, we will be discussing the velocity, and we will be discussing the acceleration. These three things are basically the roots of the theory of machine. Theory of machine may be defined as a branch of engineering science which deals with the study of relative motion between the various parts of the machines and the forces which act on them. So basically हम इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर we will be discussing the relative motion between the different parts of the machine and the forces which act on them and which causes the relative motion. The knowledge of this subject is very essential for an engineer in the design purpose. So basically if you want to be a design engineer, theory of machine, the course like theory of machine, machine design 1, machine design 2, these courses are very important courses. Next is basically the subdivision of theory of machine, in which we have kinematics and kinetics. So what is kinematics? The study of motion without regard of the forces is known as kinematics. Kinematics is basically that branch of theory of machines which is responsible to study the motion of the bodies without the reference of forces. यानी कि काइनामेटिक्स के अंदर हम चीज़ों की रिलेटिव मोशन को तो डिस्कस करते हैं, लेकिन उन चीज़ों के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं या जिन फोर्सेस की वजह से वो रिलेटिव मोशन हो रही है, ये इससे इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि उन चीज़ों को हम इसके अंदर डिस्कस नहीं करते. तो किन को हम डिस्कस करते हैं? अगेन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. एंड व्हेन वी डील इन काइनेटिक्स, काइनेटिक्स के अंदर इन दोनों को डिस्कस किया जाता है, यानी कि मोशन और जो फोर्सेस जो काज हैं आपकी मोशन का, उनको भी डिस्कस किया जाता है. द स्टडी ऑफ द फोर्सेस ऑन अ सिस्टम इन मोशन इज नोन एज काइनेटिक्स. So what is the application of kinematics? Virtually any machine or a device that moves contains one or more kinematic elements such as linkages, cam, gear, belt and chain. ये जितने भी मैंने आपको मैकेनिज्म बताए ये सारे मोशन के मैकेनिज्म, यानी कि आपकी बेल्ट ड्राइव जो है ये भी मोशन प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है फ्रॉम द ड्राइवर टू द ड्रिवन. चेन्स का भी यही आपके पास पर्पज़ है, गियर्स का भी यही पर्पज़ है, कैम का भी यही पर्पज़ है, लिंक्स का भी यही पर्पज़ है. तो इसकी जो एप्लीकेशन है इस ब्रांच ऑफ साइंस की वो इन मशीन एलिमेंट्स के अंदर मौजूद है. A bicycle is the best example of kinematic system that contains a chain drive to provide the torque and the multiplication and simple capable operated linkage for the braking. In an automobile, there are steering systems, wheel suspensions, piston engines which contain linkages, engine valves open and close with the help of the camshafts, transmission is made possible through the gears. तो ये सारे के सारे मशीन एलिमेंट जो हैं ये आपके इस ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर फॉल करते हैं. The windshield wipers is basically also a linkage driven system. मोटर होती है, उसके आगे लिंक्स जुड़े हुए होते हैं जो आपके वाइपर्स को जो है वो मूव कराते हैं. सो डिज़ाइन और एन इंजीनियरिंग डिज़ाइन, ये आपके कैम डिज़ाइन दिखाई गई है. ये आपके पास एक कैम है और ये इसके ऊपर इसका फॉलोअर जो है ये मूव कर रहा है. जब ये फॉलोअर यूँ मूव करता हुआ इसके टॉप पोर्शन के ऊपर आएगा तो यहाँ से आपकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी. जब ये बॉटम पोर्शन के ऊपर आएगा तो हाइट डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि ये सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रहा है और उसकी वजह से जो है वो आपको ट्रांसलेशन और द लीनियर मोशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है.
इस तरह से जो है ये डिज़ाइन एलिमेंट के अंदर जो है रिलेटिव मोशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस किया जाता है। या आपको बेल्ट ड्राइव्स और गियर ड्राइव मैकेनिज्म्स दिखाए गए हैं। अगेन द पर्पस इज सेम, यू हैव टू प्रोवाइड द मोशन। ठीक है, इसके अंदर मोशन प्रोड्यूस हो रही है। ये आपको आगे लिंक्स दिखाए गए हैं कि कैसे जो है वो लिंक मूव करते हैं। ये आपको एक 4 बार टिपिकल मैकेनिज्म दिखाया गया है। ये यहाँ से दोनों साइड से हिंज हुआ है और यहाँ पे आपके पास 3 लिंक्स मौजूद हैं और हर लिंक के ऊपर दो दो नोड है, 1 2 1 2 और 1 2। ठीक है, तो इस 4 बार मैकेनिज्म के अंदर किस तरह से मोशन प्रोड्यूस होती है, इसके अंदर क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, इन सारी चीज़ों को जो है वो हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। नाउ सबसे पहले जो है इस कोर्स को समझने के लिए यू नीड टू स्टडी द डिज़ाइन प्रोसेस। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द वेरियस टेक्निक्स एंड द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स फॉर द पर्पज ऑफ डिफाइनिंग अ डिवाइस, a process, or a system which is in sufficient details to permit its realization। तो डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर जो भी टेक्निक्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स या उसका जो पर्पस है, इन सारी चीज़ों को इन डिटेल जो है वो हम पढ़ते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, तब जाके हमारा जो आइडिया है वो एक रियलाइजेशन की तरफ जाता है। Design may be simple or enormously complex. It depends upon the need। आपकी नीड क्या है, आपके कस्टमर या आपकी क्लाइंट की नीड क्या है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर और द क्लाइंट और अकॉर्डिंग टू द बजट कंस्ट्रेंट, उसके मुताबिक जो है वो डिज़ाइन बनाया जाता है कि ये आपका एक सिंपल डिज़ाइन होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, इजी होगा, डिफ़िकल्ट होगा। Either it will be a mathematical design or it will be a non-mathematical design। It may involve a trivial problem or one of the great importance। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या होती हैं, आगे हम इसको देखते हैं। डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर जो है इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप जो है एक आइडिया से रियलाइजेशन की तरफ जाते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड। व्हाट इज द नीड, कि आपकी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू डिजाइन अ मशीन, डिवाइस और एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट। व्हाट इज बैकग्राउंड रिसर्च, उसके ऊपर फिर आप बैकग्राउंड रिसर्च करते हैं कि उसके ऊपर लिटरेचर मौजूद है, पास्ट के अंदर कोई काम हो चुका है, या आपका नोवल आइडिया है तो उससे मिलती जुलती कोई चीज़ मार्केट के अंदर अवेलेबल है। व्हाट इज योर गोल स्टेटमेंट, कि हाउ यू आर वांट टू अचीव द गोल, द परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस, कि वो जो चीज़ आप बना रहे हैं उसके अंदर क्या क्या उसकी परफॉर्मेंस की स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, यानी कि उसके डायमेंशंस क्या होंगे, कितनी हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रही होगी, कितना टार्क होगा, कितना मोमेंटम होगा। आइडिएशन एंड इन्वेंशन, उसके बाद जो है वो फिर आप इन्वेंशन स्टेप की तरफ जाएंगे, उसको बनाने की तरफ जाएंगे। एनालिसिस होगा, फिर सिलेक्शन होगी, उसमें मटेरियल सिलेक्शन होगी, डिज़ाइन सिलेक्शन होगी, फिर आप उसका एक डिटेल डिज़ाइन तैयार करेंगे। उस डिज़ाइन के अंदर आपकी कैड ड्राइंग्स और मैथमेटिकल डिज़ाइन दोनों चीज़ें जो है वो इनकॉर्पोरेट की जाएंगी। देन देयर विल बी प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग, फिर उसका एक सिंगल लेबॉर्ट्री मेड यूनिट आप बनाएंगे और उस यूनिट को लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्ट करेंगे। आफ्टर द टेस्टिंग इज पास इट विल बी ओके और गो हेड फॉर द प्रोडक्शन, उसके बाद वो मार्केट में प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल होगा। So identification of the need. Now first step in design is basically what we need. This may be an unstructured problem statement or a structured problem statement. It requires brainstorming to identify the needs. For example, if we say we need a better lawn mower, so it's basically an unstructured problem statement। आपको एक बेटर लॉन मूवर चाहिए, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड है, लेकिन ये अनस्ट्रक्चर्ड है। आपको कैसा चाहिए, इट वुड बी एन ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल, इट वुड बी एक्सपेंसिव और चीप, इट वुड बी मोटर ड्रिवन और इंजन ड्रिवन। ये आपके पास फिर आगे स्ट्रक्चर बनेगा कि आप उसको बिजली से चलाना चाहते हैं तो मोटर ड्रिवन बना लेंगे, वहाँ पे बिजली अवेलेबल नहीं है तो आप उसका इंजन ड्रिवन बना लेंगे, आपके पास कोई बजट कंस्ट्रेन नहीं है तो आप एक्सपेंसिव बनाएंगे, बजट कंस्ट्रेन है तो आप उसको चीप रखेंगे। आप अगर उसके ऊपर मैनुअल लेबर लगाना चाहते हैं तो इट वुड बी अ मैनुअल प्लांट, इट वुड बी अ मैनुअल लॉन मोवर। सेमी ऑटोमेटिक है, एक वर्कर की मौजूदगी में मशीन काम करेगी। फुली ऑटोमेटिक है तो वो अपने आप कंप्यूटर बेस्ड काम करेगा। तो ये है आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड। उसके बाद आएगा आपके पास बैकग्राउंड रिसर्च। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज इन द प्रोसेस एंड इट इज अनफॉर्चुनेटली ऑफन द मोस्ट निगलेक्टेड वन।
The term research is used in this context, which is to collect the background information on different aspects of the problem. If the similar problem is solved before then, it is no point to reinvent the wheel. The patent literature and the technical publication in the subject area are the obvious source of information. बैकग्राउंड रिसर्च आपको बताएगी कि अगर इन पास्ट सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके सेम मशीन या सेम मशीन पार्ट बन चुका है तो उसको री इन्वेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके पास मार्केट में अवेलेबल है, उसको जाके लेने उससे काम करें। अगर नहीं है तो फिर देयर इज़ अ नीड कि आप प्रोसीड कर सकते हैं फर्दर। नाउ द गोल स्टेटमेंट, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड फिर आप रिकास्ट करते हैं दोबारा से अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को टू द गोल स्टेटमेंट। दिस शुड बी कंसाइज, be general and uncolored. The goal statement clearly defines the functional visualization of the design. Now your goal is to make a machine. ठीक है जी। आगे है आपके पास performance specification. After the goal is clearly stated, formulate the set of performance specifications. The difference between performance specification and the design specification is that इनमें फ़र्क है आपकी परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में। आपकी परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन जो है वो ये है कि व्हाट द सिस्टम मस्ट डू, कि सिस्टम को कौन कौन से काम करने चाहिए, यानी कि इफ़ यू हैव टू मेक एन ऑटोमोबाइल तो उसको क्या करना चाहिए, इट मस्ट मूव ऑन द रोड, हाउ मच लोड इट कैन कैरी, सही है। तो ये आपके पास आएगा द व्हाट द सिस्टम मस्ट डू। और जो आपके पास डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है वो आपको बताती है कि हाउ द सिस्टम डज वर्क, ठीक है जी। अब सिस्टम स्पेसिफिकेशन में आप बताएंगे कि अगर गाड़ी ने चलना है तो वो 3 सिलेंडर होनी चाहिए, 4 सिलेंडर होनी चाहिए, इतनी हॉर्स पावर होनी चाहिए तो इतना लोड लेके वो कैरी कर सकती है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योर परफॉर्मेंस एंड डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। द पर्पज ऑफ परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन इज टू केयरफुली डिफाइन and constrain the problems so that it both can be solved and can be shown to have been solved after the fact। इसका मतलब ये है कि आप परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन के अंदर चीज़ों को लिमिटाइज करते हैं। आप एक 70 सीसी बाइक से एक 2700 सीसी डबल डोर हाइलेक्स की परफॉर्मेंस या काम नहीं ले सकते, ठीक है। तो परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन के अंदर आप लिमिटाइज करते हैं अपने प्रोजेक्ट को कि मैंने इसकी परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन यहाँ तक रखनी है। इफ अ 70 सीसी बाइक इज मेड, इट्स मेड फॉर ए 1 passenger, and if a car is made, it is made for 5 passengers, and if a bus is made, it is made for the 50 passengers. So that are basically the design performances. Ideation and invention. This phase is much critical for most designers. It consists of brainstorming process, idea generation process and creative process. इसके अंदर आपके पास 3 तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है कि आइडिया क्या होगा और उसकी क्रिएशन कैसे होगी, उसकी क्रिएशन का प्रोसेस क्या होगा कि आप आइडिया से रियलाइजेशन की तरफ किस तरह से जाएंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग रूल रिक्वायर्स दैट नो वन इज अलाउड टू मेक फन ऑफ द fun or to criticize anyone's suggestion, how ridiculous the idea is, no matter. So being a fresh design engineer or being a fresh graduate, your thinking is basically out of the box. आप उस आउट ऑफ द बॉक्स सोच की वजह से जो है कोई भी आइडिया लेके आ सकते हैं। इट कुड बी अ रिडिकुलस आइडिया एंड इट कुड बी अ मार्वलस वंडर। तो ये मतलब किस्मत है या आप कह सकते हैं आपका नॉलेज है उसकी बेस के ऊपर। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टेप के ऊपर वेलकम किया जाता है कि आपकी किसी भी तरह की सजेशन है, आप ऑन बोर्ड वो सजेशन दें। अगर वो सजेशन आपकी क्लिक कर गई तो वो जो है एक बेहतर डिज़ाइन की तरफ आपका डिज़ाइन जो है वो चला जाएगा। Next step is analysis. By applying the analysis technique, the performance of the design is examined. Different analysis किए जाते हैं डिज़ाइन के ऊपर, जैसे आपके पास एनसिस सॉफ्टवेयर है मैकेनिकल के अंदर, तो वो डिफरेंट एनालिसिस टेक्निक अप्लाई की जाती हैं कि आपका जो डिज़ाइन है वो परफॉर्मेंस देगा, यानी कि जो डिज़ाइन परफॉर्मेंसेस आपने इंडिकेट की थी शुरू में वो अचीव कर सकेगा या नहीं। देन देयर विल बी सिलेक्शन। When the technical analysis indicates that you have some potentially viable design, यानी कि आपका डिज़ाइन जो है वो करेक्ट है, यानी कि उसके अंदर पोटेंशियल है कि आप उसको फर्दर कैरी कर सकें, the best one available must be selected for the detailed design and drawing.
उसके बाद क्या किया जाता है कि उसकी डिटेल ड्राइंग के लिए उसको भेजा जाता है प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग. दिस decision matrix is made which helps to identify the best solution after considering the variety of factors in the systematic way. तो जब आप उसको डिज़ाइन के बाद प्रोटोटाइपिंग के लिए भेजेंगे तो सिलेक्शन होगी कि विच मटेरियल इज़ टू बी सिलेक्टेड, कि आपका कौन सा मटेरियल जो है वो उसको आपके डिज़ाइन को सपोर्ट कर सकेगा. अगर कहीं पे हीट जनरेशन ज़्यादा है तो आपको ऐसा मटेरियल लेना पड़ेगा विच कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर. अगर कहीं भी आपके पास स्ट्रेस फैक्टर ज़्यादा है तो आपको ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करना पड़ेगा जो आपके पास स्ट्रॉन्ग हो, हार्ड हो. ठीक है, तो ये जो सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल है ये डिपेंड करेगी आपकी एप्लीकेशन के ऊपर. देन देयर विल बी डिटेल डिज़ाइन. This step usually includes the creation of complete set of assembly and detailed drawings और computer aided design, जिसको आप CAD design यानी कि जो AutoCAD जो है वो आप अपनी लैब के अंदर भी कर रहे होते हैं. Each detailed drawing must specify all the dimensions and the material specifications necessary to make the part. Next is prototyping and testing. Although the mathematical model is very useful, yet it can never be complete and accurate as a physical model. आपका जो डिज़ाइन है मैथमेटिकली आपकी सारी कैलकुलेशन जो है वो दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन जब आप उसको रियल वर्ल्ड के अंदर लाते हैं बहुत सारे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस जो हैं वो जनरेट होते हैं और आपका जो डिज़ाइन है वो फेल हो जाता है. इसलिए उसको ऑन पेपर या ऑन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के बाद उसका एक फिजिकल मॉडल बना के उसको लाइब्रेरी के अंदर फिजिकली टेस्ट किया जाता है कि ये रियल लाइफ कंडीशंस के अंदर चलने के काबिल भी है या नहीं. Prototypes are often very expensive but may be the most economical way to prove a design. इसका फ़ायदा आपको ये है कि आप एक प्रोडक्ट बना के जब उसको टेस्ट कर लेंगे और उसकी प्रोटोटाइपिंग हो चुकी होगी, लेबॉर्ट्री में टेस्ट हो चुकी होंगी उसकी शॉर्टकमिंग्स, तो जब आप प्रोडक्शन के लिए जाएंगे तो आपको पूरी की पूरी लॉट ज़ाया नहीं करनी पड़ेगी. Then the final step is production. Finally, with enough time, money and patience, the design is ready for the production. So that is how you design. आपके FIPs के अंदर भी जब भी आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके आएंगे कि हमने ये बनाना है, तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से लेके एंड प्रेजेंटेशन में जब आप फैब्रिकेट करके प्रोडक्ट लेके आएंगे, ये सारे के सारे स्टेप जो हैं आप फॉलो करते हुए अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो बनाएं. आगे हैं आपके पास काइनेमैटिक फंडामेंटल्स. कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो काइनेमैटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनकी स्टडी और उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़रूरी है. फर्स्ट वन इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. Any mechanical system can be classified according to number of degrees of freedom which it possesses. अब ये होता क्या है? It is equal to the number of independent parameters or the measurements which are needed to uniquely define its position in space at any instant of time. Degree of freedom is defined with respect to a selected frame of reference. ये आपके पास एक पेपर है या एक बोर्ड है. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. ये इसके ऊपर एक पेंसिल पड़ी हुई है. ठीक है जी. Figure shows a pencil lying on a flat piece of paper in x and y coordinate system. If we constrain this pencil to always remain in the plane of paper, अगर हम इसको फिक्स कर दें कि इस पेंसिल ने इस प्लेन से बाहर नहीं निकलना यानी कि z एक्सिस में मूव नहीं करना, so we need 3 parameters to define this pencil. अगर ये पेंसिल लीनियरली सीधी मूव कर रही है एक्स डायरेक्शन के अंदर है तो इसी पीस ऑफ पेपर में, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है. अगर ये वाई डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है. अगर ये यूं तिरछी मूव कर रही है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वाई में भी मूव कर रही थी तो 1 ही था. जब ये तिरछी मूव करेगी तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आएगा, यानी कि एक्स में भी डिस्टेंस कवर कर रही है, वाई में भी, और साथ साथ ये रोटेट भी कर रही है यानी कि इसका एंगल भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, तो इट वुड बी 3. सो एक सिंगल प्लेन के अंदर जब एक बॉडी अनकंस्ट्रेनली मूव करती है, सो टू डिफाइन दैट बॉडी यू नीड 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक्स वाई एंड थीटा. यही इसके अंदर उसने एक्सप्लेन किया. 3 parameters degree of freedoms are required to completely define the position of this pencil on paper.
two linear coordinates x and y to define the position of any one point on the pencil on the regular coordinate and one angular coordinate. दो आपके पास linear coordinates हैं x and y और तीसरा जो है वो angular coordinate है theta to define the pencil with respect to the axis. The minimum number of measurements needed to define its position are x, y and theta. This system of pencil in a plane is known as three-dimensional or three-degree of freedom system. थ्री डायमेंशनल तो हम इसे नहीं कहेंगे लेकिन हम इसको थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे कि बिकॉज इट कैन मूव फ्रीली इन थ्री डायरेक्शन एक्स वाई एंड थीटा. तो तीन इनपुट पैरामीटर्स रिक्वायर हैं इस पेंसिल को डिफाइन करने के लिए. दैट इज व्हाई अ सिंगल प्लेनर सिस्टम इज थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम. एनी रिजिड बॉडी इन थ्री स्पेस, यानी कि कोई भी आपके पास बॉडी है वो स्पेस के अंदर है एक्स वाई जी और उन तीनों एंगल के अगेंस्ट रोटेशन, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 6 होगा. फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक अनकंस्ट्रेन्ड फ्री बॉडी है इन स्पेस. ठीक है जी. दिस बॉडी कैन मूव इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन. इट कैन मूव अलोंग, it can rotate along x, similarly along y and z. So a free link in space has 6 degree of freedom since it's free to translate in each x, y and z direction and rotate about these axes theta 1, theta 2 and theta 3. अब जब आप इस थ्री डायमेंशनल सिस्टम को फिक्स कर देंगे इन अ सिंगल प्लेनर सिस्टम, यानी कि ये एक सिंगल प्लेन है एक्स वाई. ठीक है जी. अब प्लेनर लिंकेज, हम आप इस बॉडी को लिंक कह लें, को मसला नहीं है, या एक रिजिड बॉडी जो है इट्स नोन एज अ लिंक. सो अ प्लेनर लिंकेज मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड इन ओनली एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, किसी भी के भी अलोंग. सो अ प्लेनर लिंकेज मोशन रिस्ट्रिक्टेड टू अ एक्स वाई प्लेन. द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नाउ रिड्यूस फ्रॉम 6 to 3. आप उसको सिंगल प्लेन में ले हैं, वो ऑटोमेटिकली 6 से 3 में आ गए, यानी कि एक्स वाई एंड थीटा. अब अगर इस लिंक को मैं यहाँ पे फिक्स कर दूँ, इफ यू अटैच दिस लिंक टू द ग्राउंड, यानी कि मैंने इसको फिक्स कर दिया, ना तो अब ये एक्स में ट्रांसलेट कर सकता है ना ये वाई में ट्रांसलेट कर सकता है, ये सिर्फ रोटेट कर सकता है इसके लिए, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगा. तो स्पेस में आपके पास एक लिंक है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होगा. आप उसको सिंगल प्लेन मोशन के अंदर लेंगे तो 3 हो जाएगा, और जब आप लिंक को एक साइड से फिक्स कर देंगे तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूस होकर 3 से 1 के ऊपर आ जाएगा. नाउ द टाइप्स ऑफ मोशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ प्योर रोटेशन. द बॉडी possesses one point center of rotation which has no motion with respect to stationary frame of reference. All the other points on the body are described about the arc. A reference line drew on the body through the center linkage only its angular orientation. So एक pure rotation का मतलब क्या है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1, और उस केस में क्या है कि बॉडी एक सेंटर से अटैच हुई हुई है और सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रही. प्योर ट्रांसलेशन क्या होगी, ऑल द पॉइंट्स ऑन द बॉडी आर पैरेलल, के बॉडी एक सीधी लाइन में मूव कर रही है पॉइंट टू पॉइंट, उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है लेकिन सारे पॉइंट जो है वो कोलिनियर है. अ रेफरेंस लाइन ड्रू ऑन अ बॉडी चेंजेस इट्स लीनियर पोजीशन बट डज नॉट चेंज इट्स एंगुलर ओरिएंटेशन. और जब इन दोनों रोटेशन या दोनों मोशंस को कंबाइन कर दिया जाता है, इट इज़ नोन एज अ कॉम्प्लेक्स मोशन, जो एक फिजिकल मशीन के अंदर या रियल लाइफ वर्ल्ड के अंदर मौजूद होती है. A simultaneous combination of rotation and translation is known as complex motion. Any reference line drawn on the body will change both its linear position and angular position as well. And the points on the body will travel non-parallel paths. जाहिर है अब पॉइंट की पोजीशन चेंज भी हो रही है और साथ साथ उसकी रोटेशन यानी कि उसका एंगल भी चेंज हो रहा है, तो पॉइंट जो है वो पैरेलल नहीं रहेंगे. एंड देयर विल बी डिफरेंट orientation of the point at any instant and the center of rotation. Now the joints and links. A link is basically a rigid body, जैसे मैंने अभी आपको बताया, which possesses at least two nodes. तो एक rigid body जो दोनों साइड से अटैच हो सके उसको जो है वो लिंक कहा जाता है. और ज्वाइंट क्या होता है कि जब आप इन नोड्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, a node is basically the attachment point for the links.
to join via join. Links may be classified according to the number of the nodes. अगर आपके एक लिंक के दो नोड्स हैं तो उसको बाइनरी लिंक कहा जाता है। अगर आपके एक लिंक है, ये भी आपके पास एक सॉलिड बॉडी है, सॉलिड लिंक है, अगर इसके तीन नोड्स हैं 1 2 एंड 3, सो इट्स अ टर्नरी और टर्शियरी लिंक। और अगर एक सॉलिड बॉडी के या एक लिंक के चार आपके पास नोड्स हैं तो ये क्वाटर्नरी आपके पास लिंक है। ठीक है, इसके चार नोड्स हों। लिंक, the order of the link indicates the number of joints to which the link is connected. So लिंक का जो ऑर्डर होता है वो ये होता है कि वो कितने नंबर ऑफ जॉइंट जो है वो बना सकता है या कनेक्ट कर सकता है, और वो इक्वल होता है नंबर ऑफ नोड्स के। दो नोड्स हैं तो दोनों साइडों से वो जॉइंट बना सकता है। तो इस लिंक का ऑर्डर जो है, बाइनरी लिंक का ऑर्डर क्या होगा, 2। क्वाटर्नरी लिंक में आपके पास तीन नोड्स हैं तो तीन जॉइंट्स यहाँ पे लग सकते हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3। इसी तरह क्वाटर्नरी लिंक है, इसके चार नोड्स हैं तो चार जॉइंट्स लग सकते हैं, तो इस लिंक का ऑर्डर जो है वो 4 होगा। लिंक्स आर अज्यूम्ड टू बी रिजिड बॉडीज। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इन लिंक्स को जो है अज्यूम किया जाता है कि ये रिजिड बॉडीज हैं, कि जब इन पे लोड या फोर्स अप्लाई होगी तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। लिंक्स हैव नोड्स फॉर अटैचमेंट। लिंक के लिए ज़रूरी है कि एट लीस्ट उसके दो नोड्स हों अटैचमेंट के लिए। लिंक्स कैन बी ऑफ एनी शेप बट नॉट जस्ट शोर। इसके अलावा भी किसी भी शेप का हो सकता है, उसके 5 नोड हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। वो डिपेंड कर रहा है कि किस मशीन के अंदर वो लगा हुआ है और उसमें कौन सी मोशन आपको चाहिए। और लिंक का जो ऑर्डर है उसके नंबर ऑफ नोड्स के इक्वल होता है। बाइनरी के जैसे 2, टर्नरी के 3, क्वाटर्नरी के 4। ठीक है जी। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।